Hello everyone, online class 8th, subject SST, chapter 7, part 2, erosion cycles. Apardan Chakra. The changing external forces also work along with weathering. These forces continually add to make the surface flat, and they also work for weathering transpirations and depositions. This is called erosion cycle. Rivers, glacier, wind, underground water and sea waves are the key agent of leveling. The surface leveling can be classified into two categories. First, slow bursting, and second, rapid bursting. The rapid erosion cycle shifts the rocks from its original place by rubbing, cutting, peeling, so that high elevated areas gradually decreases. This process is called slow bursting or denudation. अपेक्षा के साथ साथ परिवर्तनकारी प्रहार शक्तियाँ, जिन्हें अनाच्छादनकारी शक्तियाँ भी कहते हैं, धरातल को समतल करने की निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। इससे ही अपर्दन चक्र कहते हैं। नदियाँ, हिमानियाँ, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। तल संतुलन के कार्य को दो भागों पर बांट सकते हैं। फर्स्ट है निम्नीकरण, सेकंड है उच्चयन। अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, खुरचकर और काटकर उनको अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इससे छोटे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। The process of shifting the broken or unbroken materials downwards is called transportation. ऊंचे स्थान से अविघटित पदार्थों को निचले भागों तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। The process of deposition of weathered materials in low-lying regions or holes is called aggradation. As long as the weathering materials fill up the holes, its height keeps on growing. This process is called high bursting. निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपर्दित पदार्थों को जमा होते रहने को निक्षेपण कहते हैं। अपर्दित पदार्थों गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को उच्चयन, अर्धवृद्धिकरण कहते हैं। फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर और रिवर। बहते हुए जल अथवा नदी के कार्य। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर evaporates, some of it slips into the earth, and most of it flow down the slope of land in nulles and rivers. The flowing water of river perform important functions of surface balancing. The work areas of rivers are quite vast. The rivers from its origin to the mouth make different types of landfall. वर्षा जल का कुछ भाग बाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, कुछ भाग भूमि के अंदर रिस जाता है और तथा अधिकांश भाग धरातल पर बहता हुआ नदी नालों और में पहुंच जाता है। बहता हुआ यही जल नदी के रूप में तल संतुलन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। नदियों को कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। नदियों अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक विभिन्न स्तरों पर अपनी कार्यों से विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। द फ्लोइंग वाटर of rivers affects the surface in three ways, which are called three functions of rivers: erosion, transportation and depositions. नदियों को प्रभावित जल तीन तरह के धरातल से प्रभावित करता है, जिन्हें नदी के तीन कार्य कहा जाता है:
फर्स्ट है अपरदन, सेकंड है परिवहन और थर्ड है निक्षेपण। इरोशन। अपरदन। द वाटर ऑफ रिवर बाई इट्स फोर्स टैक्स the broken materials of rocks downward which comes in its way. The materials come up in the way of rivers due to weathering and erosions. These materials are called the weight of the rivers. This weight functions as the tool for rubbing. These materials work by rubbing and cutting the bottom and banks of rivers, and this make the river bottom deep and banks more wide. This process is called erosion. The word of erosions depend on the quantity of river water is currents, this the slope of river and the shape of rocks. The river erosions happens in 4 ways. बहती हुई नदी का जल अपनी शक्ति के द्वारा अपने मार्गों को आने वाले विखंडित चट्टानों पदार्थों को नीचे की ओर ले जाता है। नदी मार्ग में यह पदार्थ अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं द्वारा आते हैं। इन पदार्थों को नदी का भार कहा जाता है। यह भार घर्षण के औजारों के रूप में काम करता है। यह पदार्थ नदी के तल तथा किनारों को घिस कर काटने का काम करता है, जिससे नदी की तली गहरी और पाट चौड़ी हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं। अपरदन कार्य नदी में जल की मात्रा, नदी का वेग, नदी की ढाल और चट्टानों की बनावट पर निर्भर करता है। नदी अपरदन 4 प्रकार से होता है। द रिवर इरोशन हैपन्स इन 4 वेज। नदी अपरदन 4 प्रकार से होता है। एवर्शंस। अपघर्षण। The pieces of rocks move with the flow, scratching and shifting the bottom of river. This process is called eversions. बहाव के साथ चट्टानी टुकड़े तली और किनारों को खुसते और घिसते चलते हैं। इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। सॉल्यूशन। घुलन। Chemical reaction is ion being carried and their solution in river water result in the form of erosion. घुलन। नदी जल के संपर्क में आने वाली घुलनशील चट्टानों पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घुले पदार्थ जल के साथ बह जाते हैं। हाइड्रोलिक एक्शन। द फ्लोइंग वाटर विथ इट्स ऑन पावर एक्सर्ट पार्टिकल्स projecting from the bed and banks result in hydraulic action. Weak bedrock and various forms of regolith are easily curved out by hydraulic action. भौतिक दाब शक्ति द्वारा नदी जल बहता हुआ अपनी शक्ति से चट्टानों को संघियों जोड़ों से ढीला कर उनके टुकड़ों को लुढ़कता हुआ ले आता है। इस कार्य को नदी का जल किनारों से टकराता हुआ वहाँ जमी चट्टानों को ढीला कर अपने साथ बाहर ले जाता है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग। सत्र घर्षण। रोलिंग pebbles and stones rubbed among turn into round after frictions. Rolling pebbles and stones rub among themselves. As a result, they break into small particles. Pointed pieces turn into round after frictions and become small. Third, these 4 processes the rivers make various landform on the surface. लुढ़कते हुए कंकड़ पत्थर आपस में एक दूसरे से टकराते चलते हैं, जिससे उनमें एक और अधिक टूट फूट कर आपसी घर्षण होता रहता है। नुकीले टुकड़ों का आकार घिस कर रगड़ कर गोल और छोटा होता रहता है। इन चारों प्रक्रियाओं से नदी धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर इरोशन। नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। The most of erosion function happens in the upper part of a river. They forms gurge, canyon, V-shaped valley, waterfall, and springs. Among these gurge, V-shaped valley, and waterfall are prominent. नदी के ऊपरी भाग में अपरदन का कार्य अधिक होता है। इससे महाखंड या गार्ज, कैनियन
और भी आकार की घाटी, जलवर्तिका, क्षिप्रिकाएँ और जलप्रपात का निर्माण होता है। इसमें भी महाखंड बी आकार की घाटी तथा जलप्रपात मुख्य हैं। गॉर्जे When the river passes through a bed of hard rocks in highland, its main works it depend its valley. The results in a narrow and steep-sided valley and the current of the water split rocks, due to which deep valley gorges and canyons and formed the famous gorge at Bhedaghat in Jabalpur is worth watching. The Grand Canyon of Colorado in the USA in world famous. महाखंड आपने ऊपरी भाग में उद्गम के पास और अपने युवावस्था पर नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना होता है। इस भाग का जल वेग अधिक होने से चट्टानों के टुकड़े अपनी तली को खुरच कर गहरा करते रहते हैं। इस कारण गहरी कंदराएं, महाखंड और कैनियन का निर्माण होता है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट का महाखंड दर्शनीय है। उत्तर अमेरिका के कोलोरेडो नदी का ग्रैंड कैनियन विख्यात है। वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी। द टारगेट ऑफ रिवर एरोशंस इज टू रिच at its base level the base of the sea or lake in which the river falls in called the base level of river erosion. The river makes its valley deep and widen its banks, it result into V-shaped valley. नदी के अपर्दन कार्य का लक्ष्य अपने आधार तल तक पहुंचना होता है। उस झील के समुद्र के तल को उसमें वहाँ गिरती है। नदी अपर्दन का आधार तल कहते हैं। नदी अपनी घाटी को गहरा और किनारों को चौड़ा करती है, जिससे भी आकार की घाटी का विकास होता है। वाटरफॉल, जलप्रपात। When the river water falls almost vertically from a sufficient height along the course of the river, it is called waterfall. If any rocks is vertical in the way of the river, then permanent waterfall is formed. Water which fall splits the soft rocks very speedily and forms a plango pool at the base. जलप्रपात, जल वह नदी का जल किसी चट्टानी कागार पर ऊपर से सीधे नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यदि नदी का मार्ग में कई कठोर चट्टानें लंबतः खड़ी पाई जाती हैं तो स्थायी जलप्रपात का जन्म होता है। ऊपर से गिरने वाला जल अपनी अपर्दन शक्ति से नीचे की कोमल चट्टानों को तेजी से काटता है, जिससे जलधारा को नीचे गहरा गड्ढा बन जाता है। Transportation, the river sweep the rocky materials from one place to other. This process of rivers is called weight bearing. The transportation capacity of a river depends on its current, quantity of water, the pebbles and pieces of rocks included in the weight. The intensity of river flow increase the transportations also. परिवहन का कार्य, नदी चट्टानी पदार्थों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ बहा कर ले जाती है। इस क्रिया को नदी द्वारा भार वहन कहा जाता है। नदी का परिवहन क्षमता उसके वेग, जल की मात्रा और भार वहन में शामिल परिस्थितिक खंडों ककड़ों पर निर्भर होती है। नदी के वेग बढ़ने पर परिवहन क्षमता भी तेजी से बढ़ जाती है। डिपोजिशन, निक्षेपण कार्य। When a river enters into plain from hilly areas, its speed decreases as the slope is very mild. Its capacity of weight bearing also decreases. Consequently, the few part of weight starts getting deposited in the low parts. This process is called deposition. The deposition activity takes place in plain or low-lying areas. When river falls into a lake or in the sea, then it deposits all its weight there at its mouth. The river performing its depositions works in plain and low-lying areas also from alluvial fans, expo, natural levee and floats, plains, dam and plain.
जब नदी पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग पर प्रवेश करती है तो मंद ढाल होने से उसके प्रवाह गति में मध्य पड़ जाती है। इससे साथ में उसके भार वहन शक्ति से भी कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भार में कुछ अंश निचले भागों पर जमा होने लगता है। इस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण क्रिया सामान्यतः मैदानी या निम्न क्षेत्रों में होती है। जब नदी किसी झील या समुद्र में मिलती है तो अपनी मुहाने पर सारा भार या अवसाद जमा कर देती है। नदी अपना निक्षेपण कार्य मध्यवर्ती मैदान भाग पर निचले भाग पर संपन्न करते हुए जलोढ़ पंख या एवं गोखुर झील, तटबंध व डेल्टा की रचना करती है। एलुवियल फैंस। The velocity of river's water is reduced due to reductions in slope when it enters the plains after laying the mountains. Hence, the rock materials, this now as alluvial fans, is deposited at the foothill. जलोढ़ पंख। नदी ढाल पर्वतीय भाग में से जैसे ही समतल मैदानी भाग पर प्रवेश करती है तो उसका वेग घटने से उसके भार वहन क्षमता मध्य हो जाती है। इससे भारी पदार्थ पर्वत प्रदीप भागों पर अर्धवृत्ताकार पंख के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। Oxbow Lake. When a river flows across its plains, the speed of the river water slows down the river, and the rivers does both the works of erosion as well as depositions. Even a small obstruction will force it to bend its path. A river normally flows proved path rather than going straight to and fro. Movement of the river canal across its plain results in developing S-shaped meanders. In the end, the curvatures become so sharp that the river breaks through the meander and forms a loop. In such conditions, the remaining water remains as a lake. This resembles to an oxbow in shape, therefore this is now as oxbow lake. गोखुर झील। जब नदी खुले समतल मैदान पर बहती है तो उसके प्रवाह का वेग बहुत ही मध्य हो जाता है। जरा सी रुकावट से प्रवाह इधर उधर मुड़ जाता है। यह नदी मार्ग अत्यंत घुमावदार हो जाता है। इन घुमावों पर विसर्प कहते हैं। विसर्पों को निचले किनारों पर निक्षेपण और ऊंचे किनारों पर कटाव होने से इनका आकार अक्षरों अंग्रेजी के अक्षर एस की भांति हो जाता है। कालांतर में नदी की धारा विसर्प को छोड़कर सीधे सामने वाले भाग पर मिल जाती है। ऐसी स्थिति में छूटा हुआ जल भरा भाग एक झील से दूसरे रूप में रह जाता है। इसका आकार गाय के खुर की तरह होता है, अतः इसे गोखुर झील कहते हैं। नेचुरल लेवी एंड फ्लोट प्लेन। तटबंध और बाढ़ का मैदान। नेचुरल लेवी इज द राइज्ड बैंक ऑफ embankment built by the river in plain areas. Sometimes during the floods, the water flows over the embankment and spread badly. This water deposits fine particles in a base area. When the floods is over, slate accumulates at the sides of the river. This is now as floods plain. The Ganga Brahmaputra plains is met in some way in the lower course of the river. The slightest slackening of speed at once results in deposition, so that silt accumulates at the bottom and the sides of the river. After a long time, the bed of the river is raised and it flows at a higher level than the plains on either side. मैदानी भाग में नदी के दोनों किनारों में बने लंबे टीलों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। कई बार नदी बाढ़ आने पर जल तटबंधों के ऊपर से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है। यह ठहरा हुआ जल अपने साथ लाए महीन कण विस्तृत भाग में जमा कर देता है। जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो मिट्टी की परत चारों ओर जमा हो जाती है। इसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। भारत में गंगा पुत्र का मैदान इसी प्रकार है। डेल्टा। When the river enters to the sea or a lake, its velocity gets very slow. The mud deposited along the bank
cause of slow carrying capacity of water becomes an obstacle and divides the river into numerous branches called distributaries. The river has a alternative but a discharge in water sluggishly only thought they distributaries. It deposits all the load at its mouth, giving rise to the formation of a delta. It is triangular features with its apex pointed upstream and is marked as a fan-shaped area of fine alluvium. The Ganga Brahmaputra Delta, Nile Delta and Mississippi Delta and are the biggest delta of the world. डेल्टा जब नदी निचले भाग में किसी झील या समुद्र में मिलती है तो उसका भाग बहुत ही मध्य हो जाता है, जैसे प्रवाह रुक सा गया हो। ऐसी अवस्था में नदी अपनी सहमत महीन कणों वाला भार मुहाने पर बिछा देती है। नदी की धारा अनेक उपधाराओं से विभक्त हो जाती है। इस प्रकार बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कई प्रकार आकार वाले होते हैं, जैसे पंखाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा विश्वविख्यात है। एस्चुरी Some of the rivers do not form delta at their meeting point. Such rivers become wider at their meeting point, the sea, and the sea waves sweep away the water of the rivers into deep sea. Most of these places remain lower. These are called estuaries. In India, Narmada and Tapti form estuaries at their meeting point. एस्चुआरी ज्वार नंदमुख समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। ऐसे नदियों को मुहाना समुद्र की ओर क्रमशः चौड़ा होता जाता है। ऐसे मुहाने पर ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं यहाँ के सारे अवसादों पर गहरे समुद्र में बहा ले जाती हैं। अधिकांश मुहाने का भूभाग नीचा होता है। ऐसी स्थलाकृति को ज्वार नंदमुख या एस्चुरी कहते हैं। भारत की नर्मदा नदी तथा तप्ती नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी ज्वार नंदमुख बनाती हैं। थैंक यू।